Hello students, so welcome to Dr. Haider math classes. So today we will discuss integrals of some more types. Okay, so the integral of some more types means, let me write the integrals of some more types means the integration of root over x square minus a square dx and integration of root over x square plus a square dx and integration of root over a square minus x square dx. Okay, so integration of x square minus a square dx, this will be equal to x by 2 root over x square minus a square and minus a square by 2 log modulus of x plus root x square minus a square and plus c. Okay, and integration of x square plus a square dx, this is equals to x by 2 root over of x square plus a square by 2 log modulus of x plus root over of x square plus a square and plus c. And integration of a square minus x square dx, this is equals to x by 2 into root over a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x by a plus c. So these are the three more forms. On the basis of these forms, we have to simplify this question. Means कि सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन होगा उस गिवन क्वेश्चन को हम इन फॉर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे और जब ये फॉर्म्स में आ जाएगा तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे. राइट, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज नंबर 7.7 which is based on these three forms. Right, so exercise 7.7. Okay, very small exercise. So the very first question is question number 1. This is root 4 minus x square dx. So this can be written as integration of 4 means 2 square minus x square dx, and this is the form of root over a square minus x square dx, and this is x by 2 into root over a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x by a plus c. So as per this, a is 2 and x is of course x. So this will be equal to x by 2 a square minus x square, this is equals to 4 minus x square and plus a square means 4 by 2 and sine inverse x by a means 2 and plus c. So this is cancel out. So the final answer is x by 2 into root over 4 minus x square plus twice of sine inverse x by 2 plus c, and this is the final result of this question number 1. Right, and second question, question number 2, root over 1 minus 4x square dx. Right, so this can be written as, अब यहाँ से हम लोग 4 को पहले कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 1 by 4 minus x square dx, so this will be 2 root over of 1 by 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. अगेन ये फॉर्म आ गया आपका रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया, तो फॉर्म लगा देते हैं भाई. तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स बाई 2 इंटू रूट ओवर
ये सिंप्लीफाई होकर के यही आ जाएगा आपका, तो 1 माइनस 4x² और डिवाइडिंग बाई 4 का रूट आपका 2 आ जाएगा, एंड प्लस 1 बाई प्लस फॉर्म क्या है आपका a²/2, सो 1/4 इंटू 2 एंड साइन इनवर्स x/a मीन्स 1/2 एंड प्लस c, तो फाइनली क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x/4 एंड रूट 1 माइनस 4x² एंड प्लस 1/8 साइन इनवर्स 2x एंड प्लस c। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 रूट 1 माइनस 4x² प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x एंड प्लस c. This is the result of this question number 2. Okay. Now the next question is question number 3. And this is x² plus 4x plus 6. ओके, अब इसको कन्वर्ट कर दें फॉर्म में लाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x परफेक्ट स्क्वायर बना दें, सो रूट ओवर x² प्लस 4x और हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2, सो स्क्वायर ऑफ 2 वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. ओके, we will add and subtract, so this is integration of x plus 2 whole square and 2 square 4, 6 minus 4 2, so this is under root 2 का square, right? Or this is the form of, but under root 2 square, and this is the form of इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म x² रूट ओवर x² प्लस a², ये फॉर्म लगा दें तो ये हो गया आपका x/2 रूट ओवर ऑफ x² प्लस a² एंड प्लस a²/2 लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस रूट ओवर x² प्लस a² and plus c. This is the form. So as per this form, x means x plus 2/2 and divided by x² plus a², that will be the remain same, so directly we can write x² plus 4x and plus 6, okay, and plus a² root 2² 2/2 and log modulus of x plus 2 and plus root over of x² plus a² means x² plus 4x plus 6 and plus c. So final answer is x plus 2/2 root over x² plus 4x plus 6 and 2/2 cancel out. So this is log modulus of x plus 2 and plus root over of x² plus 4x and plus 6 and plus c, and this is the answer of this question number 3. Okay, got it? Now move to next question. This is the question number 4, and the fourth question is रूट ओवर x² प्लस 4x प्लस 1. इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 4x and half of the coefficient of x, that is 2, so square of 2 and plus 1 minus square of 2 dx. So this is equals to x plus 2 whole square and 1 and minus 4 minus 3 means minus root 3 का square, and this is the form of dx upon x² minus a². इस फॉर्म में आ गया, और इसका फॉर्म क्या हो जाएगा आपका x/2 रूट ओवर x² माइनस a² एंड माइनस a²/2 log modulus of x plus root over x² minus a² and plus c. Okay, so here x will be x plus 2 by 2 x² minus a², यही है आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही क्वेश्चन आ जाएगा आपका x²
प्लस 4x प्लस 1, ठीक है भाई, एंड माइनस a स्क्वायर मीन्स रूट 3 स्क्वायर, so root 3 square that is 3, so 3 by 2 and log modulus of x plus 2 and plus root over x square minus a square, that will be equal to x square plus 4x plus 1 and plus c, and this is the result of this question number 4, right? So next question is question number 5. So this question is root over 1 minus 4x minus x square dx. अब यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस कॉमन नहीं निकालेंगे, अदरवाइज रेडिकल, इसमें रेडिकल साइन निगेटिव हो जाएगा, तो जैसे अगर माइनस निकालोगे आप इस तरह से, तो 1 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और ये रूट में आ गया, तो ये रूट माइनस 1 की मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, इसलिए यहाँ से पूरे में से माइनस नहीं निकाला जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, कहाँ से निकालेंगे भाई, रूट 1 माइनस, अब पहले हम ब्रैकेट लगा दें और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, हो गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट 2 स्क्वायर ऐड कर दिया और माइनस 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट, डबल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 4, 4 प्लस 1 5 बन जाएगा आपका, है ना भाई, 5 बन जाएगा ना, क्योंकि जब यहाँ माइनस है इसको ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो 2 स्क्वायर 4 1 5, सो इंटीग्रेशन ऑफ 5 मीन्स रूट 5 का स्क्वायर एंड माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो फॉर्म आ गया आपका रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का फॉर्म आ गया, ठीक है ना, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया, तो फॉर्म लगा देते हैं। सो फॉर्म लगाने के बाद क्या बन जाएगा फॉर्म, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x प्लस 2 बाई 2 और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब यही वैल्यू आएगी 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर 5 बाई 2 एंड साइन इनवर्स x प्लस 2x अपॉन a is root 5 and plus c, and this is the answer of this question number 5, है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ हमें इसको रिड्यूस करके फॉर्म पे ले जाना था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx, बना दीजिए परफेक्ट स्क्वायर, so x square plus 4x, half of the coefficient of x2, so square of 2 and minus 5 and square of 2, है ना, add and subtract कर दिया, so this is equals to x plus 2 whole square, okay, and minus 5 minus 4 minus 9 that is 3 का square, तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म आ गया, और रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब यही वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एंड माइनस ए बाई ए स्क्वायर बाई 2, द वैल्यू ऑफ ए इज 3, सो 9 बाई 2 एंड log modulus of then x means x plus 2 and plus x square minus a square means root over x square plus 4x minus 5 and plus c, and this is the answer of this question number 6, okay. So next question we are going to simplify the question number 7, and the seventh question is integration of 1 plus 3x minus x square dx, दिस इज द क्वेश्चन। तो अब इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा, रूट ओवर 1 और इसको माइनस कॉमन निकाल लीजिए यहां से, ओके, टेक माइनस एज ए कॉमन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया एंड dx, और अब इसका हाफ ऑफ द कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट
3/2, तो -9/4 एंड प्लस 9/4। ओके, ओपन करेंगे इसको तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1 + 9/4 कितना हो गया? 13/4। सो इसका मतलब हो गया 13/4 माइनस x -3/2 होल स्क्वायर, है ना? इसका स्क्वायर मैंने 9/4 लिख दिया। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, -+3x एंड +3/2 होल स्क्वायर एंड -3/2 होल स्क्वायर, राइट? तो a² + b² -2ab दैट इज a - b होल स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 9/4 हो गया। तो 1 + 9/4 दैट इज 13/4। अब इसको फॉर्म पे ले आते हैं, तो ये हो गया आपका dx अपॉन √13/2 होल स्क्वायर एंड -x -3/2 होल स्क्वायर dx। अब ये फॉर्म आ गया आपका √a² - x² का फॉर्म आ गया। सो क्या फॉर्म हो जाएगा ये? x -3/2 अपॉन 2x/2 और √a² - x² क्या वैल्यू आई थी? ये इसी का सोल्यूशन ये आया है, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 + 3x - x² and then plus a² means 13/4 into 2 sin inverse x -3/2 upon a √13/2 and plus c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो x -3/2 2 LCM ले दें तो 2x हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया 2x - 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4 इंटू 1 + 3x - x², और ये हो गया 13/4 2 ज़ा 8 साइन इनवर्स 2x - 3 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो 2x - 3 अपॉन √13 + c, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। ओके, now the question number 8 is √x² + 3x dx। इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। तो x² + 3x, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड और 3/2 का स्क्वायर माइनस, तो ये आइडेंटिटी बन गई आपकी x + 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस a² दैट इज 3/2 का स्क्वायर, राइट? कौन सा फॉर्म आ गया भाई? dx अपॉन √x² - a² का फॉर्म आ गया। फॉर्म लगा देते हैं तो x + 3/2 अपॉन 2, है ना, इंटू √, तो एज इट इज आ जाएगा x² + 3x², चूंकि x² + स्क्वायर की वैल्यू आ गई, माइनस a² यानी कि 9/4/2, ठीक है, और लॉग मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा? x + 3/2 और प्लस √x² + 3x एंड प्लस c। सिंप्लीफिकेशन कर दें, 2x + 3 अपॉन 4, ओके, एंड इंटू x² + 3x, 2 नीचे आ जाएगा, -9/8 लॉग मॉडुलस ऑफ, चाहे तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लें या यहीं छोड़ दीजिए इसको, x + 3/2 एंड प्लस x² + 3x and plus c, and this is the answer of this question। ठीक है, कितनी आसान सी एक्सरसाइज है। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? दैट इज √1 + x² / 9, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज √9 LCM हो गया आपका, तो 9 + x² हो गया, और 1/9 को बाहर निकाल देते हैं रूट से, तो ये आ गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ रूट। अब इसको लिख देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस x² dx हो गया, और हो गया ना, तो a² + x² का फॉर्म लगा दें,
तो ये आ जाएगा अब आपका 1/3 इंटू एक्स बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9/2 ए स्क्वायर बाई टू एंड लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस सी। अगर इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा x/6 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो 3/2 लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9. Okay, now move to next question, that is question number 10. And 10th question is root over 1 plus x square dx. Again same type of question, a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सीधा सीधा फॉर्म लगा देते हैं, एक लाइन में ख़त्म हो गया. सो x बाई टू एंड रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 1/2 एंड लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस रूट 1 plus x square and plus c. This is finished, complete. And question number 11, this is root over x square minus 8x plus 7 dx. परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, इसको फॉर्म लगा दीजिए. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट 4 और माइनस 4 का है ना, और प्लस 7 dx. सो x प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर और 16 प्लस 7 माइनस 9 मीन्स 3 का स्क्वायर. ओके, एंड नाउ दिस इज द फॉर्म ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो x माइनस 4/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 and minus a square 9/2 log modulus of x minus 4 and plus root over x square minus 8x plus 7 and plus c, and hence this is the complete. Okay, so in this way we have completed all the indefinite integrals. So आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव में इसको शेयर कीजिए और कहिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर की इस क्लासेस को देखो, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं करीब करीब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. और in the next class we will start definite integral. Indefinite we have completed. Thank you very much. कर दो भाई, बंद हो गया.